Hello and welcome all of you on this YouTube channel of Learning Lab, where you can learn without limits. Dear students, in our previous video, we have discussed all 5 marker questions, and in today's video, I am going to discuss 11 marker question. So, as you all know that question number 3, just wait for a second, that your question number 3 has 5 question. सभी का आंसर हमको लगभग 200 वर्ड्स में देना है और 5 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चन में हमको ऑल्टरनेटिव मिले हुए हैं, मतलब दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है सिंधु वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, इस बारे में आपकी क्या राय है? ओके, सो एज यू ऑल नो दैट द टाइम पीरियड ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन विच इज ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज 3300 से लेकर के 1300 BC। इसको 3 फेज में डिवाइड करते हैं, प्री, मेच्योर एंड लेट। टाइम पीरियड ऑफ प्री वाज 3300 till 2600, mature 2600 till 1900 BC, and late from your 1900 BC till 1300 BC। और 1300 BC के बाद क्या आ जाएगा आपका? आयरन एज और आपका वैदिक कल्चर, वैदिक एरा, जिसको कि 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्ली एंड लेटर। सो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लीव दिस इन्फॉर्मेशन, वी हैव टू स्टिक ऑन आवर primary information or the demand of the question, that is about Indus Valley civilization. So here what you can write, so as you all know that it was the first urbanized civilization, because there are many things which you have read in your NCERT books or other standard source. So we have to club together all the gathered information here and write a good answer in 200 words. So as we have liberty to express our thoughts, so better that we can give a proper structure to our answer. So in our answer you must include some diagram or flowchart or maps. So here in this question what you can do, you can draw the map of India, okay, and there you can tell कि where expand किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ये पूरा एरिया जो है इट बिलोंग्स टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक रफ डायग्राम बनाना है आपको ताकि थोड़ा सा आई कैची और आपका जो आंसर है वो थोड़ा डिफरेंट फील हो एग्जामिनर को। देन व्हाट you have to write in your introduction. In intro, you have to mention about the time period of IBC, okay, and some features of it. As I mentioned all, ये बता चुका हूँ मैं आपको पहले ही सारा। Then in body, you have to give some 6-7 points. For example, the first point should be well planned cities. You know that Harappan cities are planned cities. Okay, there are citadel and lower town. They're divided into 2 parts. So, for example, for each city, you should remember few things like urban planning and other things. For in urban planning, what you can mention? You can mention that grid pattern. जैसे आज के ज़माने में भी जो क्रिस क्रॉस इस तरह से जो हम देखते हैं कि घरों की जो बनावट होती है शहरों में, जो प्लॉट्स कटते हैं कॉलोनीज में, वो इस तरह से कटे जाते हैं। सिमिलरली द सेम पैटर्न यू कैन सी इन Harappan sites as well. So it was known as grid pattern. Then citadel,
इन लोअर टाउन। तो फॉर एग्जांपल टुडेस कॉलोनीज में भी कैसा मिलता है कि भाई जो प्लांट सिटीज़ होती हैं तो पोश एरियाज जो होते हैं वो आपने देखे हैं अलग टाइप के होते हैं, और लोअर टाउन फॉर एग्जांपल जो आपका कंजेस्टेड एरिया जो होता है LIC MIC वगैरह, वो आपका कितना कंजेस्टेड होता है। तो यू कैन सी दैट दैट टाइप ऑफ डिफरेंस एट दैट टाइम ऑल्सो। देन सेकंड, सम प्रोमिनेंट एग्जांपल। सो हियर यू कैन गिव हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड धोलावीरा, लोथल, etc. Then come to our next point, that is point number 2. So here you can mention about advanced infrastructure. Here you need to remember some points like drainage. So as you all know that the streets have underground drainage lines and potholes as well at regular distance. So it shows that how advanced that civilization was. Then second is water resources. As you all know that Harappans, they constructed many water resources uh, structures like well, tanks. For example, you can find Great Bath at Mohenjo-daro. It reflects the marvel of uh, the Harappans, that how well equipped and technologically sound they were. Then you can come to next point, that is architectural sophistication. Here you can mention few things like ब्रिक्स। अब आपको पता है कि हड़प्पन्स जो है बर्ड ब्रिक्स का यूज करते थे, और इसका एक प्रॉपर साइज था, एक स्टैंडर्डाइज्ड उन्होंने कर रखा था। तो ये अपने आप में शो करता है कि हाउ सोफिस्टिकेटेड दे वर। देन कैन मेंशन पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्डिंग्स। इन पब्लिक बिल्डिंग यू कैन मेंशन अबाउट ग्रेनरीज, देन ग्रेट बाथ। इट इट ग्रेट बाथ जो थी वो एक रिचुअल साइट के रूप में भी काम में आती थी। ओके, ऐसा माना जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा। So you have to mention about these things. Then in our next point, point number 4, you can mention about economic and trade activities. Here you have to mention about the economic condition of Harappans. For example, they are surplus in agriculture. कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो क्या क्या प्रोड्यूस करते थे। कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूँ, बार्ले, राइस, मिलेट, 2-3 चीज़ें और है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देन it comes to trade activities, import and export. So as you all know that हड़प्पन्स जो थे वो क्या एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस थे उनको एक्सपोर्ट करते थे, और प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स लाइक कॉपर, टिन एट्सेट्रा इनको इंपोर्ट करते थे। फॉर एग्जांपल जो मेसोपोटामिया, सॉरी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो है उनके साथ हड़प्पन्स के
ट्रेड रिलेशंस थे। और ये कैसे पता चलता है? क्योंकि हड़प्पन सील्स जो हैं वो आपको वहाँ पर मिलती हैं। यू हैव टू मेंशन दीज थिंग्स। देन in economic activity itself comes crafts. सो आप जानते हैं कि हड़प्पन जो थे वो कुशल कारीगर थे। फॉर एग्जांपल बीड मेकिंग इंडस्ट्री, वेयर दे यूज चर्ट, जेस्पर, कॉर्नेलियन, etc. So bead making industry, similarly bangles, टेराकोटा फिगराइंस, ये सभी आपको मिलता है वहाँ पर। So you have to mention all these things. Later on, come to our next point, that is social organization. Why I am telling about social organization? Because अगर इतनी बड़ी कोई सिटी है या सभ्यता है, वेल प्लान्ड, तो डेफिनेटली कोई ना कोई अथॉरिटी जो है वो उसको कंट्रोल करती होगी। सो यू हैव टू मेंशन अबाउट दिस थिंग दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, बिकॉज जो ग्रैंड्योर ये शो करती है तो इट डेफिनेटली रिफ्लेक्ट कि देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ रूलिंग क्लास एज वेल which control the administration of Harappan cities. So in this way you can write this point. Then here only you have to mention about social stratification. In social stratification, why we are uh, mentioning this point? Because it reflects from here that some people are living in Citadel, some are living in Lower Town. It means those who were living at Citadel, they might be uh, rich or influential person, and those who lived there in Lower Town, they might be act as servant to them. So this is a clear cut distinction between people. That's why I am telling ki there was social stratification. Now move on to next point, that is cultural and religious life. Here you can mention artifacts and sin, and second is religious practices. As you all know that Harappan उन्होंने बहुत सारी सील्स चला रखी थी, है ना? और उनके माध्यम से काफ़ी जानकारी हम लोगों को मिलती है। सिमिलरली आर्टिफैक्ट्स जो थे वो भी बहुत सारे मिलते हैं, जैसे कि बियर्ड प्रीस्ट की मिलती है, डांसिंग गर्ल की एक प्रतिमा मिलती है। सिमिलरली रिलीजियस प्रैक्टिस जैसे मदर गॉडेस को मानते थे। तो ये सब बताता है कि इन दैट सिविलाइजेशन देयर वाज एंगेजमेंट ऑफ रिलीजन, इकोनॉमी, ट्रेड, कल्चर। तो ये सब आपस में एक दूसरे से मिले हुए थे, एंड ये सब इस सभ्यता को क्या बनाते हैं? एक अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन। देन लेटर ऑन यू हैव टू राइट अ प्रॉपर कंक्लूजन। In conclusion, what you can mention that yes, all these things which we mentioned earlier reflect a similarity in today's cities as well. It means with the help of all these evidences, we can say that yes, Harappan civilization was first urbanized civilization. Then move on to our next question. ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही ऑल्टरनेट क्वेश्चन जो है वो है, इट इज़ अबाउट द
art and architecture of Gupta period. So we have to describe and develop the development of art and architecture during Gupta period. As you all know that the time period of Gupta was 322 647 AD. कुछ लोग इसको 550 AD भी मानते हैं, बट लास्ट के जो 100 साल हैं उसमें जो वीक रूलर्स थे उन्होंने राज किया, और फिर उनके फ्यूडेटरीज जो थे लाइक वर्धन्स वगैरह वो फिर डोमिनेंट रूलर के रूप में इस्टेब्लिश हुए. सो इन इंट्रोडक्शन you have to mention about the time period and mention about the golden age which reflect in its art, architecture, literature, science, etc. So you have to write all these things in your introduction. Then come to body part. Here in body you have to give some points regarding architecture, sculpture, painting, terracotta, and at the end you can mention about literature as well, because yes, literature was also a part of art and architecture. So it is not architecture, but it has some element of art. So you have to mention that also. So first, step by step, we have to discuss this question. So first point is architecture. In architecture, what you can mention? You can mention two things. Number one is temple architecture. In temple architecture, you have to mention again few sub points like Nagara style. As you all know, Gupta पीरियड के दौरान ही नागरा स्टाइल, जो नागरा शैली है टेम्पल कंस्ट्रक्शन की, उसका डेवलपमेंट हुआ, और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो अलग अलग स्कूल है, जैसे कि चंदेल स्कूल खजुराहो में हुआ, इसके अलावा सोलंकी स्कूल गुजरात में, देन उड़ीसा में जो है टेम्पल जो है वो भी नागरा स्टाइल में ही आते हैं. सो यू हैव टू टेल अबाउट नागरा स्टाइल. कुछ बेसिक फीचर जैसे कि सेंटम सेंटोरम होता है, इस तरह के मंदिर होते हैं. पहले तो फ्लैट रूफ हुआ करते थे, लेकिन लेटर ऑन तो ये एक अंदर जो होता है ये होता है सेंटम सेंटोरम. देन इसके बाद इस तरह का पूरा एक वो हॉल होता था, मंडप जिसको बोलते हैं. तो यू हैव टू ड्रॉ सच टाइप ऑफ डायग्राम. ओके, इट विल fetch you good marks compared to your competitors. So this is mandap, then this is शिखर. फिर एक एम्बुलेटरी पाथवे एक होता है जहाँ पर आप परिक्रमा करते हैं. So you have to mention about these things: sanctum sanctorum, mandap, शिखर, etc. Then come to some examples. So prominent examples are Temple of Devgarh. ये सबसे पहला जो टेम्पल नागरा स्टाइल का इसको माना जाता है. देन नचना कुटाना, वहाँ पर पार्वती टेम्पल है. देन लक्ष्मण टेम्पल ऑफ बीतरगांव. ये कुछ एग्जांपल आप दे सकते हैं. देन कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज स्कल्पचर. सो हियर यू कैन मेंशन क्लासिकल स्कल्पचर लाइक they sculpted the figure of deities and yaksh and yakshanis. मंदिर के बाहर दिखते हैं हमको यक्ष एंड यक्षिनीज. एक प्रोमिनेंट फिगर था उस समय के टेम्पल्स का. दूसरा मटेरियल यूज क्या किया था इन्होंने यूजुअली सैंडस्टोन का उपयोग किया है ना. देन कम टू योर एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल में आप लिखेंगे
सारनाथ बुद्धा, कि किस तरह से भगवान बुद्ध की एक सीटेड प्रतिमा मिलती है आपको, सीटेड स्टेचू, जो कि धर्म चक्र का उपदेश देते हुए दिखाई देते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा में। देन सेकंड इज स्टैंडिंग बुद्धा, ये आपको मिलेगा मथुरा में। और किस तरह का एक जो उनके पीछे का जो हेलो होता है वो दिखाया गया है, और एक वो पीसफुल और एक काम कंपोज फिगर जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है भगवान बुद्ध का। देन यू कैन मेंशन अबाउट सम हिंदू डिटीज एज वेल। फॉर एग्जांपल उदयगिरी केव जो हैं विदिशा में, वहाँ पर भगवान विष्णु का वराह अवतार दिखाया गया है। तो यू हैव टू मेंशन दीज थिंग्स। देन कम टू थर्ड पॉइंट, दैट इज पेंटिंग। इस समय पेंटिंग्स भी काफ़ी मिलती थी, है ना। जो केव जो आर्किटेक्ट है जैसे कि अजंता, एलोरा और आपका बाग केव जो है, वहाँ पर पेंटिंग मिलती है। अजंता में जो फ्रेस्को पेंटिंग है, फ्रेस्को दो टाइप की होती है, फ्रेस्को सिक्को एंड फ्रेस्को बोनो। तो अजंता की जो फ्रेस्को हैं, यहाँ पर आपको जातक टेल्स, जातका टेल्स जो हैं वो दिखाई देती हैं कि भगवान बुद्ध के जो प्रीवियस अवतार हुए हैं और किस तरह से उन्होंने उनकी जर्नी रही है, वो सब यहाँ दिखाया गया है इन जातका टेल्स में। और जो टीचिंग है भगवान बुद्ध की वो भी दिखाई गई है। सिमिलरली बाघ केव की अगर बात करें तो ये भी अजंता केव का एक रिफ्लेक्शन यहाँ आपको मिलता है। उदयगिरी केव उसको भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हो गए। देन कम टू टेराकोटा आर्ट, ये भी इस समय देखने को मिलेगी। So you have to mention about terracotta art as well. Then next point is literature and intellectual achievements. Here you can mention about संस्कृत लिटरेचर, किस तरह से कालिदास जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे, नौ रत्नों में से एक, उन्होंने किस तरह से संस्कृत लिटरेचर को अपने चरम पर पहुंचाया। और जो ड्रामाज उन्होंने लिखे हैं, जो पोइट्री उन्होंने लिखी है, ड्रामा फॉर एग्जांपल अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ठीक है, मालविकाग्निमित्र। पोएट्री में देखें तो जो ऋतु संहार और मेघदूत उन्होंने लिखी है। सिमिलरली रघुवंशम नाम का भी एक उन्होंने एपिक लिखा है, लिरिक एपिक। तो ये सब आपको मेंशन करना है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द रिच आर्ट एंड आर्किटेक्चर phase of Guptan period. So after writing all these points, you can conclude your answer with the help of a good conclusion. So in conclusion, what you can mention, you have to mention about that Gupta period was a golden age of Indian art and architecture, and it acts as a foundation for future growth and development of art and architecture. So in this way you can conclude this answer. सो डियर फ्रेंड्स, आई थिंक कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक एक छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं और उसमें एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, एंड इन माय अपकमिंग वीडियोस आई विल डिस्कस दी नेक्स्ट क्वेश्चन
like question 3.2 to 3.5. So आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और आपके कोई भी डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में आप बेहिचक लिख सकते हैं, एंड हमारे एजुकेटर्स आपके हर डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए यू हैव टू बी क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।